Good morning, students. This is Pradyuman sir again in front of you, and here comes with your new video on the topic of your ninth chapter, that is using the internet. Okay, so basically in this chapter, in this video, we are going to discuss about some basic points. Okay, so some basic points are like organizing your file. Okay, in the previous video we just got to know that how could we just simply create sign in and sign out, and after that upload a file or a folder into the Google Drive, and how could we just simply make a personal account in Google Drive with the following steps. So we just simply get all these details information in that video, but now in this video we are going to discuss about the organizing your file into your Google Drive. How could you just simply organize your file in your Google Drive account? Okay, so you can use a folder in the Google Drive to organize all the files. Means you can create a folder over there, and also you can upload a folder. Means suppose you wanted to upload all the musics that is stored in your computer, we'll just simply move into the Google Drive. Then you can just simply place that folder in the open folder file, and after that click on that particular music folder and click on the open button. Then after you will find that your particular folder is to be uploaded in your Google Drive. That may take some time because it is dependent upon the internet speed onto your areas. Okay, now after that you can use a folder in Google Drive to organize a file. To create a folder in the Google Drive, follow these steps. So again you have to just simply, whenever you doing something new, then always click on the new option. Okay, now in the Google Drive, click on the new option button, and after that click on the folder from the drop down menu. Okay, that same menu in the previous video that you watched that. So we'll watch that there will be a menu where you just simply upload a file upload option, use of file upload option and folder upload option. But in this video we are going to discuss that folder. Okay, creating a new folder. So let's learn that. So click after clicking on the folder option in the from the list, a new folder box will appear in front of you like this, and type the name of your folder. Okay, as when you just simply create a folder in your desktop screen, likewise you can just simply create a folder in your Google Drive desktop screen. Okay, so type the name of that particular folder according to your need, and after that click on the create option. Likewise this is a blue button, and after that your folder will be appeared under the folder section. Your folder will appear under the folder section like 9.23. Okay, so you just simply got that your folder is just simply seen in that particular folder list. Okay, now after that, sharing a file. That how could you simply share a file that is pre-installed or pre-uploaded to your Google Drive. Okay, means suppose a picture or a video that you upload in the Google Drive and you wanted to share that video with your friends and colleagues, then how would you do this? To do so you have to just simply follow these steps. So Google Drive allow you to share your file easily. Anyone using Google Drive can easily view and edit a file you share with them. Okay, means सपोज़ अगर मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ गूगल ड्राइव से, और बस इसके लिए सिर्फ आपका गूगल अकाउंट चाहिए, तो मैं शेयर पर क्लिक करूँगा, आपकी गूगल आईडी डालूँगा, जीमेल आईडी, एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर फाइल और दैट पर्टिकुलर वीडियो और डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट जो कुछ भी मतलब होगा वो आपके पास ईजिली चला जाएगा. बस आपको उसको डाउनलोड करना होगा और आप उसको एंजॉय कर पाएंगे. ओके, सो क्या क्या स्टेप्स हैं टू शेयर अ फाइल और अ फोल्डर. क्लिक ऑन द फाइल दैट यू वांटेड टू शेयर. मतलब सबसे पहले तो वो फाइल ओपन करो जिस फाइल को आप शेयर करना चाहते हो. ठीक है, इसके बाद क्लिक ऑन द शेयर बटन लाइक दिस, यानी कि वहाँ पर एक प्लस का सिंबल बना होगा, उस पर आप क्लिक करिए और वो शेयर का बटन होता है. इसके बाद द शेयर विद अदर बॉक्स विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. यहाँ पर आपके सामने शेयर विद अदर बॉक्स आ जाएगा. तो यहाँ पर आप उन रिसिपिएंट का नाम डाल सकते हैं जिनको आप वो डॉक्यूमेंट्स या जो वीडियोज़ हैं या जो फ़ोटोज़ हैं वो आप शेयर करना चाहते हो, उनका आप नाम डालिए और आप पाएंगे कि आप जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे आपकी वो फाइल और फोल्डर है वो इजीली सेंड हो जाएगी. ओके, सो
नाउ व्हाट इज इसके बाद दिया गया इफ़ द प्यूपल बॉक्स टाइप द सॉरी इन द प्यूपल बॉक्स टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द प्यूपल यू वांटेड टू शेयर योर फाइल विद, यानी कि जिन जिन लोगों के साथ आप वही व्हाट्सअप जैसा तरीका है, जिन जिन लोगों के आप साथ शेयर करना चाहते हैं उन उनके नाम टाइप करिए और वो सारे लोग आपके सामने जब दिखाई दें उनको टैप करके उनको टैग करिए। टैग करते ही जैसे ही आप सेंड बटन पर आप क्लिक करेंगे हैं तो इसके बाद आपके पास मतलब ऐड अ नोट आल्सो, हाँ वहाँ पर आप एक नोट भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई आपको पर्सनल ऐसा नोट देना है, ठीक है, तो आप जैसे सपोज़ आप एक फ़ोटो है जो आप 4-5 लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आपने फ़ोटो टैग किया सभी लोगों को, वहाँ पर लिख दिया गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड जैसे ही आप सेंड बटन पर क्लिक करोगे क्या होगा, सभी लोगों के एक पास वो मैसेज एक साथ जाएगा। ये वाला मैसेज, ये वाला तरीका हम लोग दिवाली या होली के टाइम पर ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, now click on the send button, your file will be shared in the same way you can also share a folder also। okay, सब वही तरीका है, आपको ये शेयर करना तो आप ये शेयर कर लीजिए, आपको वो शेयर जो कुछ भी शेयर करना पहले वो आपको ओपन करना पड़ेगा, शेयर बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, एक नई विंडो खुलकर आएगी, उसमें आपको उन लोगों को नेम, मतलब नेम यहाँ पर मतलब नेम से नहीं है, मतलब है जीमेल आईडी से, तो जीमेल आईडी आपको शेयर करनी पड़ेगी। जीमेल आईडी आप जैसे ही करेंगे इसके बाद क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी वो शेयर हो जाएगी। And just a minute after that, e-commerce. So what is that e-commerce? E-commerce stands for electronic commerce. It includes the buying and selling of goods using the internet. As the usage of internet service has increased, the need of e-commerce has grown. E-commerce include online shopping, ticket booking, bill payment and so on. Means all the particular process, मतलब जो कुछ भी हम लोग खरीदते या बेचते थे, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, IRCTC जो वेबसाइट है ताकि आप लोग ट्रेन की टिकट बुक कर सकें, तो ये सारी ही चीज़ें जो है ई कॉमर्स कहलाती हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि कोई भी व्यवसायिक काम जो है वो हम अब इंटरनेट पर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वेबसाइट्स। ओके, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स क्या है? सम एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स आर टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेपर, यानी इसके ज़रिए पेपर का कोई यूज़ नहीं होता, मतलब हम लोग टिकट जो बुक करते हैं वो हमारे पास ई टिकट आ जाती है और हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल पर। टू प्रोवाइड क्विकली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपको बहुत जल्द प्रोडक्ट को डिलीवर करता है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इट प्रोवाइड एन ईजी एक्सेस टू अ वास्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन सर्विस, यानी कि ये आपको एक ही समय में कम समय में आपको कई सारे ऐसे फीचर्स शो कराता है जिसको आप यूज़ करके अपनी लाइफ ईजी कर सकते हैं ना। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है ये तो हर किसी को पता है, ये बताने की मुझे आई थिंक मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, मिंत्रा है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट allowed you to buy product using the internet. You can access a website to search for product you want. ओके, मीन्स यहाँ पर आपको जो कुछ भी खरीदना, आप पहले के टाइम में फ्लिपकार्ट में सिर्फ बुक्स मिलती थी, लेकिन आज के टाइम में फ्लिपकार्ट पर आपको वो हर एक चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है, ये मोबाइल है, बुक्स हैं, पेन, पेंसिल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कुछ भी जो चाहिए आपको वो हर एक चीज़ मिल जाएगी। इवन आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑनलाइन रेंज फ्रॉम क्लॉथिंग, फर्नीचर, कार, मोबाइल फ़ोन, होम यूटिलिटी एंड मैनी मोर। मैंने जैसा बताया आज के समय में इंटरनेट पर सब कुछ बिकता है, जो आप सोच रहे हैं सब कुछ बिकता है। आप बस उन वेबसाइट्स पर जाइए, आपको वो चीज़ आपको घर बैठे वो चीज़ आपके घर पर आ जाएगी। ओके, सम वेबसाइट यू कैन यूज़ फॉर ऑनलाइन शॉपिंग लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड ईबे, मिंत्रा। ओके, सब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? सम एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग आर इट इज़ ईजियर टू फाइंड अ प्रोडक्ट ऑनलाइन दैन लुकिंग फॉर इट इन अ लोकल स्टोर। यानी देखो लोकल स्टोर में जा कर के समय बर्बाद करना, फिर उसके साथ पेट्रोल बर्बाद करना, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि आप वही चीज़ मोबाइल पर ईज़िली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो। ठीक है, अब आपको कैसे, जैसे ऐसा समझ लीजिए जैसे आपने कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप आप खरीद रहे हैं। ठीक है, लैपटॉप आप खरीद रहे हैं तो लैपटॉप खरीदते समय आपको ध्यान देना होता है क्या? रैम, रोम, ठीक है, प्रोसेसर एंड आफ्टर दैट द कैच मेमोरी। ओके, अब यहाँ पर मेमोरी भी ध्यान रखना होता है कि SSD है कि HDD है। ठीक है, किस टाइप की मेमोरी है तो वो भी आपको ध्यान देना होता है। फिर इसके बाद क्या है, स्क्रीन डिस्प्ले का साइज़ क्या है, प्लस उसमें हमें नंबर कीपैड मिलेगा। ठीक है, नंबर पैड मिलेगा या न्यूमेरिक पैड। ठीक है, इसके अलावा
जो उसका माउस पैड है वो कितना बड़ा या कितना छोटा होगा, ये सारी चीज़ें हमको उसमें ड्यूरेबिलिटी देखना होगा। अगर आपको ड्यूरेबिलिटी भी चेक करनी होगी, प्लस उसमें विंडो मतलब जो उसका OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चेक करना पड़ेगा कि विंडोज़ है, iOS है या फिर और कोई है जो कुछ भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करने के बाद ही आपको ऑनलाइन शॉपिंग यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ये आपके टाइम और एनर्जी दोनों को बचाता है, यानी कि देखो यहाँ से बाज़ार तक जाना, ठीक, तो उसमें पेट्रोल या पैसा जो कुछ भी लगा, फिर समय लगा, और उसमें भी पता नहीं चीज़ पसंद आई या नहीं आई, तो यहाँ पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन में क्या है, चीज़ पसंद आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात ही नहीं, हमारा तो घर पे काम तो आराम से बैठे बैठे काम कर ही रहे थे, ठीक है। इट प्रोवाइड यू द ईजी ऑफ बाइंग समथिंग विदाउट गोइंग टू अ मार्केट, यानी बिना बाजार जाए आप कोई भी चीज़ घर पर आसानी से खरीद सकते हैं। आपको लेने भी नहीं जाना है, वो पर्टिकुलर आदमी उनका मतलब जो डिलीवरी बॉय होगा वो आपके घर पर उस चीज़ को दे करके जाएगा। इट गिव यू एक्सेस टू अ वाइडर रेंज ऑफ ऑप्शन। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको जो पसंद आए आप वो लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर एक ही चीज़ मिले, ठीक है। आपको कई सारी कंपनी, जैसे जबकि क्या होता है कि आप जैसे लैपटॉप लेने गए तो एक स्टोर में आप गए तो वहाँ पर आपको एक ही या दो कंपनी आपको मिलेंगी, जबकि इंटरनेट पर आपको सारी ही कंपनियाँ मिल जाएंगी जो आपने शायद ही ये कभी कभी सुनी ही ना हो, ठीक है। ऐसी ऐसी रेंज मिल जाएंगी जो हो सकता है शायद आपके स्टोर पर वो चीज़ अवेलेबल ही ना हो, तो ये भी ध्यान रखना होता है। डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्या है, सम डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग्स आर, तो यहाँ पर दो दिए गए हैं पॉइंट्स। यू मे रिसीव एन इन्फीरियर प्रोडक्ट, दिस कुड हैपन बिकॉज यू कैन नॉट होल्ड एन ऑनलाइन प्रोडक्ट बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड, यानी कि ये ध्यान रखना कि जब भी आपके पास कोई ऑनलाइन ऑर्डर आए तो उसको ओपन करते समय, ठीक है, अगर मान लो उसमें कोई ख़राबी निकलती इन दैट कंडीशन, ऐसा हो जाता है कभी कभार कि प्रोडक्ट है वो आ रहा है, उसके पैकिंग में या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो टूट जाता है या पहले से ही टूटा होता है या कोई उसमें कुछ गड़बड़ कर दे, तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आपको तुरंत ही क्लेम करना होता है, ठीक है। यानी अगर आपको सपोज़ आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से कोई भी चीज़ मंगवाई, आफ्टर दैट आपके मंगवाने के बाद आपने देखा कि आपने मंगवाया मोबाइल, उसमें मिला आपको जो है सर्फ एक्सेल की एक साबुन की जो बार होता है, ठीक है, आपको सर्फ एक्सेल जो कपड़े धुलने वाला साबुन है वो मिला, तो इन दैट कंडीशन आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस सिंपली तुरंत ही जा कर के एक रिपोर्ट फाइल करनी है, किस पर, उसी वेबसाइट पर जाके एक रिपोर्ट फाइल करनी है कि मुझे जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था, जिसके मैंने आपको रुपए दिए, वो प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला है और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो वो पैसे आपके पास तुरंत ही वापस आ जाएंगे और वो चीज़ जो भी सर्फ एक्सेल जो आया था वो आपका वापस चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है उसमें कुछ 2-4 दिन या 5-6 दिन या 7 दिन का टाइम लगे, लेकिन आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिटर्न अ प्रोडक्ट दैट यू बाई ऑनलाइन, नहीं, बिल्कुल गलत है ये लाइन, ठीक है। इसमें जो ये डिसएडवांटेज दिए गए हैं दोनों ही गलत दिए गए हैं, ठीक है। इन्होंने बताया है, पहला इन्होंने पॉइंट बता दिया कि कभी कभार हम लोगों को गलत प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, मिल जाने दो, अगर कोई गलत प्रोडक्ट मिल भी रहा है इन दैट कंडीशन हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं विद मोर बेनिफिट्स, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिलता है, हाँ ये इसमें ये कह सकते हैं कि टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है कि अगर कोई गलत, सपोज मैंने लैपटॉप मंगवाया, लैपटॉप की जगह उन्होंने कोई किताब रख के भेज दी, तो यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन मेरा पैसा कोई वेस्ट नहीं जाएगा। मैं रिपोर्ट फाइल करूँगा, 7 दिन बाद वो बंदा आकर के, मतलब 7 दिन नहीं, वो तो 1-2 दिन बाद ही आके वो किताब लेके चला जाएगा। इसके बाद फिर वहाँ पर पूरी जो प्रोसेस होती है, कार्रवाई होगी, ठीक है, कंपनी में चेकिंग प्रोसीजर देखा जाएगा सब कुछ, और डिलीवरी बॉय से भी पूछा जाएगा कि तुमने बीच में कुछ गड़बड़ तो नहीं की। सारे जब कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर लगता है कि उसमें उसकी फॉल्ट है, फिर यहाँ पर डिपेंड करता है कि कहीं आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, ठीक है। यहाँ देखो क्या होता है ना, कई बार कस्टमर भी कुछ गलत काम कर देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, इन दैट कंडीशन आपको आपका पैसा वापस मिलेगा। अगर कंपनी से फॉल्ट है तो आपका पैसा वापस आएगा, अगर आपका फॉल्ट है दैट यू विल पे फॉर इट, ओके। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद जो उनका सेकंड पॉइंट है जो उन्होंने लिखा तो गलत है, मैं इसको भी सही सिद्ध कर दूंगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिटर्न अ प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत है, कोई गलत नहीं। अगर आप कोई चीज़ मंगवाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और जैसे मैंने एक बार लंच बॉक्स मंगवाया मिल्टन, ठीक है, तो उसका जब लंच बॉक्स आया तो उसकी जो बॉक्सेस थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे,
ठीक है, मतलब उसमें अगर मैं जो आप वेजिटेबल्स में जो सब्जी जो बनती है, रोटी जो पूड़ी जो कुछ भी बनती है, तो वो स्टोर करना इट इज़ नॉट ईजी इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स। ठीक है, तो उस कंडीशन में मैंने उस लंच बॉक्स को वापस किया। तो मैंने आज रिपोर्ट फाइल की, अगले दिन दोपहर को वो बंदा आया, लेकर के गया और सारे पैसे जो मेरे थे वो मुझे उसने लौटा दिए। ठीक है, फिर मैंने दूसरा लंच बॉक्स सेलो का ऑर्डर किया, उसके बॉक्सेस बड़े बड़े थे। ठीक है, तो फिर मैंने वो परचेज़ किया। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस इन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड अ वेब ब्राउज़र और अ सॉफ्टवेयर लाइक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। आप उनका यूज़ करके इनको आराम से मंगवा सकते हैं। बस यहाँ पर बात होती है कि आप परमिशन की, आप जब भी कोई ऑर्डर करें उससे पहले आप अपने गार्जियन से परमिशन लें कि माँ या पापा मैंने ये चीज़ मंगवाई है, ये इतने रुपए की है, मैं मंगवाऊँ या नहीं। अगर वो आपको सजेशन देते हैं तो देन इट्स ओके। ठीक है, बस ये एक प्रॉब्लम है ऑनलाइन ऑर्डर में, क्योंकि कई लोगों को डर बैठ जाता है कि ऑनलाइन ऑर्डर सेफ़ है या नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ 100% सेफ़ है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका पूरा पैसा आप जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा। आपको बैंक अकाउंट में चाहिए तो बैंक अकाउंट में मिलेगा, कैश ऑन हैंड चाहिए तो कैश ऑन हैंड भी मिल जाएगा। तो जैसा पैसा आपको चाहिए आपको वैसा पैसा मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टॉपिक इज़ आल्सो completed and I think this video goes too much lengthy, so I'm just simply stopping this video here. But before stopping this video, I'm just simply remembering that if you are new here in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly, and just wait for the exercise and question answer. I will just simply give or upload all these things in the Google Classroom very soon, so just wait for it. Okay, and stay tuned with my channel, and goodbye students. Make sure that you like the video also. Okay, bye.